امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو ان ممالک کے مقابلے میں برابری کی سطح پر ہونا چاہیے جو یہ پروگرام رکھتے ہیں۔ محکمہ جنگ کو حکم دیا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار ٹیسٹ کرنا شروع کر دے اور یہ عمل فوری طور پر ہونا چاہیے۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہے، روس کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ دوسرے ممالک کے پاس ٹیسٹنگ پروگرام موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے ان سے براہ راست بات کی اور کہا کہ وہ مہاجرین کو ویسٹرن بارڈر پر بسا دیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں 10 ارب روپے قرض حسنہ فراہم کرنا ہوگا۔ یہ بات تو پھر ممکن نہیں تھی۔ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 4 دن کی بات چیت ہوئی ہے اور کئی مواقع ایسے آئے جب لگ رہا تھا کہ اب معاہدہ ہو جائے گا، مگر ہر بار کابل سے کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی تھی کہ سارا معاملہ وہیں رک جاتا تھا۔ وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے اور بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ جو ہے ہو گیا ہے، تو کابل سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایسی بات کہہ دی جاتی تھی کہ وہ قتل ہو جاتا تھا۔ سارا کچھ جو بھی گھنٹوں کی دنوں کی جو ہے ساتھ جو ہے جو طے پایا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کہا کہ ہم ان کو جو ہے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کہ اس کو ہم ان کو لے جاتے ہیں، مجھے اس وقت صوبے کا نام بھولا جو انہوں نے کہا، وہاں پہ جا کے بسا دیتے ہیں ان کو ویسٹرن بارڈر کے اوپر، اور آپ ہمیں 10 ارب روپیہ قرض حسنہ دیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے تاکہ ہم ان کے ایکسپینس جو ہے اٹھا سکیں۔ یہ تو پھر نہ والی بات ہوئی نا۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ ہو یا سیلاب، ترکیہ مدد میں ہمیشہ پیش رہا۔ ترکیہ کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے دل ترک بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج جدید ترکیہ صدر طیب اردوان کی غیر معمولی قیادت کے باعث جدید تہذیب ثقافت کا امتزاج بن چکا۔ حال ہی میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں 4 دن میں دشمن کو سبق سکھایا اور اس جنگ کے دوران ترک صدر طیب اردوان چٹان کی مانند پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ترکیہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور دونوں ممالک یکجان دو قالب ہوں گے۔ That Turkey would stand by Pakistan through thick and thin. Little did they know that Turkey would, one of the most forward-looking country, would stand by Pakistan through wars, through earthquakes and devastating floods. Our armed forces, led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal Syed Asim Munir and our brave officers and soldiers of our Air Force, led by Zahir Baba, our land forces, we taught a lesson of the life to India within these 4 days. Tayyip Erdogan, my very dear brother, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. This is friendship. This is what we call fraternal relations. A day will come when the two countries will be like one sword and 2 hearts. کلعدم تحریک لبیک کے 6 سے کارکنان کو مارنے کا الزام لگایا گیا، لیکن لاشیں اور ثبوت کہاں ہیں؟ کروڑوں روپے اور اتنے ہتھیار کہاں سے آئے؟ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا اور املاک جلانا قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، کہا فلسطینی خوشیاں منا رہے تھے، یہاں اسلام آباد پر ہتھیاروں کے ساتھ چڑھائی کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اگر کوئی جتھا سڑکیں بند کرے اور کہے میری مرضی چلنے دو تو عوام اور حکومت یرغمال بن جائیں گے۔ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی، ہتھیار اٹھانا، املاک جلانا قبول نہیں۔ ماضی میں سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتیں بنی، لیکن کسی بھی مذہب یا قانون کے تحت بے گناہوں پر حملے جائز نہیں ہیں۔ مریم نواز نے PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور املاک جلائیں، جس کے بعد وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ کو لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ انگوانیبل ہو گیا اور اس ملک میں کام نہیں ہو سکتا، اس پرسیپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو جائز کام کے لیے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو جائز کام کے لیے رشوت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو جائز کام کے لیے خواری اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ گورنمنٹ کا ایبسولوٹ فیلئر ہے۔ تو یہ تمام ڈپارٹمنٹس کو، تمام ڈسٹرکٹس کو میری اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہے کہ اس کو کامیاب بنانا ہے، اور جہاں کہیں سے کوئی شکایت آئے گی
वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। CS ये भी होना चाहिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ज़्यादा बिजनेसेस को जिस महीने में इजाज़त मिलेगी उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उसको मेडल मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि आइन और कानून की पामाली हो रही है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। मैं मुंतखब वज़ीर आला हूँ, मुझे अपने कायद से नहीं मिलने दिया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे इजाज़त नहीं मिली। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया और एक हवालदार ने रोक दिया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है। हम अदलिया और सहाफ़त में बहुत से वाक़यात पर चुप रहे। मैं इसमें वकला का किरदार इंतहाई अहम है। वकला बहादुर, अगर जजेस बेबस हैं तो वकला के पास जाएँ। वकला ने हमेशा बड़े बड़े आमरों का मुकाबला किया, यकसा निज़ाम तालीम राइज करेंगे। वो पेशावर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हर धर्मी की आला मिसाल कायम की। जेल में बैठे एक शख्स के हुक्म पर अमल करना और एक सजा याफ्ता मुजरिम से वज़ीर आला की मुशावरत करना, क्या ये आइन और कानून के मुनाफी नहीं? आइन के तहत काबीना बनाना भी लाजिम है, मगर KP काबीना अब तक नहीं बनी और PTI के हुक्म का इंतज़ार किया जा रहा है। मानी PTI कई मुकदमात में सजा याफ्ता है और उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा। एक वजीर आला जो एक आइनी ओहदे पे बैठा हो, उस आइनी ओहदे का हलफ उसने लिया हो, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सूबे की जो आवाम है उसके हकूक वो उनको दिलवाए? हर दर्मी की ये जो एक आला मिसाल कायम की है वजीर आला KP ने, अडयाले से हुक्म के मुंतज़र थे और वहाँ से क्या हुक्म आएगा? ज़ाहिरी बात है ये इमरान लॉ नहीं है तो और क्या है। काबीना का बनाना भी लाज़िम मलज़ूम है। बानी PTI कई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और कई मुकदमात में वो अंडर ट्रायल हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जब कानून के मुताबिक उनके ऊपर केसेस हैं तो वो उनको फेस करने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वजारत अज़्मा के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। ज़राए का कहना है कि चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए कायदे अवान के नाम की जगह खाली रखी गई। आसिफ अली जरदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म के नाम का सील बंद खत लेकर मुजफ्फराबाद जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने से कबल नए कायदे अवान का नाम दर्ज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ही नए कायदे अवान का नाम लिखना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हल्फ का पासदार रहूँगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूँगा। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खुराक की फराहमी और मेयार के निज़ाम को बेहतर बनाया है। वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती नहीं इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी गई। नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को बानी चेयरमैन से मुलाकात का हुक्म दिया था। जेल इंतजामिया ने वज़ीर आला को मिलने की इजाज़त नहीं दी। अटेस्टेड कॉपी के हुसूल के लिए दरख्वास्त पहले ही जमा करवाई जा चुकी, ताहम अब तक अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। तौहीन अदालत का केस जमा करने के लिए हमें हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एडवोकेट जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत इरसाल कर दिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालत के किसी ऑर्डर में सुहेल आफरीदी या किसी और की बानी PTI से मुलाकात का जिक्र नहीं। उनके मुताबिक जेल कवानीन के तहत कैदी से सिर्फ वकला और अहले खाना मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के लिए मखसूस फहरिस्त में वज़ीर आला का नाम शामिल नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नई मुलाकात फहरिस्त तैयार करने का कोई अदालती हुक्म नहीं दिया गया। जेल इंतजामिया कानून के मुताबिक ही मुलाकातों की इजाज़त देने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि खुद भी कैद के दौरान 6 माह तक सिर्फ वकील और अहले खाना से मुलाकात कर पाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम आईनी बेंच के सामने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत थी। हमने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को डायरेक्शन जारी की गई है कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। मुझे अफसोस है सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। हमने सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्त भी दी थी। कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने शिबली फराज साहब की पिटीशन पेंडिंग थी। इनिशियली हमने 4 पिटीशनें फाइल कर दी थी, 2 उमर अयूब खान साहब की तरफ से और 2 शिबली फराज साहब की तरफ से।
दो पिटीशंस में हमने इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे जिसके बेस पे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले। हमने सेनेट के इलेक्शन के रुकवाने के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी। हमने वहाँ हाई कोर्ट से ये सदा की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा वो उसको डिस्क्वालीफाई करे। पीटीआई पंजाब में ओहदों की रस्साकशी जारी। आलिया हमजा के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के ओहदे पर काम करना चैलेंज बन गया। जराये के मुताबिक आलिया हमजा ने सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की आला क़यादत की खींचातानी के बायस ओहदे से हटने का फैसला कर लिया। आलिया हमजा ने कानूनी टीम को आइंदा मुलाकात पर बानी तरीके इंसाफ को पैगाम पहुंचाने की हिदायत भी कर दी। आलिया हमजा ने सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की आला क़यादत की खींचातानी के बावजूद बानी तरीके इंसाफ को पैगाम पहुंचाने की हिदायत की और दोनों अहदेदारान का नोटिफिकेशन करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आलिया हमजा के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के ओहदे पर काम करना चैलेंज बन गया है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई से मुलाकात के लिए नामों की अलग अलग फहरिस्तें सामने आ गईं। ज़राए पीटीआई के मुताबिक बानी से मुलाकातों के फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी सेनेटर बैरिस्टर अली जफर को दी गई थी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली जफर की जारी करदा लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। अली जफर की लिस्ट में सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, शाद खटक, ओन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़र आलम खान के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में सुहेल अफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पीटीआई के खुर्रम ज़ीशान, आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद यूसुफजई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 5 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा, ऐसा कहना इलेक्शन कमीशन का। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब होने जा रहा है जिसमें खुर्रम ज़ीशान, आज़ाद उम्मीदवार ताज आफरीदी, आबिद यूसुफजई, इरफान सलीम और पीपल्स पार्टी के निसार खान शामिल होंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने कल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। एएनपी के तर्जुमान ने बताया कि कल पार्टी के अरकान असम्बली इंतखाबात में नहीं जाएंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि एएनपी किसी हाउस ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस जमात की सूबाई असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत है, सेनेटर उसी जमात का मुंतखब होना चाहिए। यकम नवंबर से पेट्रोल ₹2.35, डीजल ₹2.50 महंगा होने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए इजाफे का इम्कान है जिसका इत्तलाक यकम नवंबर से मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.35 और हाई स्पीड डीजल में ₹2.50 फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल की समरी तैयार कर ली जो 31 अक्टूबर को वजारत ख़जाना को इरसाल की जाएगी। वजारत ख़जाना हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। मुल्क भर के गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस कंपनीज ने माली साल 2025-26 के लिए गैस महंगी करने की दरखास्तें दायर कर दी। सुई नदन की गैस ₹189 फी MMBTU गैस महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी गई। सुई सदन की गैस ₹125.41 फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी गई। सुई नदन की दरखास्त पर 7 नवंबर और सुई सदन की दरखास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी।